I would like to know, can everybody hear my voice? Please just confirm on chat. You can hear my voice and can see the screen. Okay. Thank you, Subrata ji. Thank you, Senthil ji. Kavita ji, thank you. Ashwar ji, thank you. Okay. So screen also visible and voice is also clear. Okay. So good evening and welcome to all for the session of chart patterns. Okay. So today's session is mainly on chart patterns. Okay. So before starting, anybody in this group who have already attended the session on chart patterns? If yes, you can write it down. If it is your first time, you can say it's first time. Okay, Pramod ji have already attended. Girish ji has also attended first time. Senthil ji, okay. Girish ji have already attended, okay. Chandrika ji, Siva ji, first time. Ashok Kumar ji, Rajendra ji for the first time. Kavita ji first time, okay. Harsh ji have done first time, okay. Nitin ji first time, okay. Sanjay Singh ji first time, okay. Okay. So those who have been coming for the first time, so this will be a new session for them, and those who have already attended the session, okay, the topics is same, that is chart pattern. So it would be a revision for you. And if you have any doubts from the last session, you can ask me in the chat box and I'll try to reply. Okay. So let's start without wasting time. So chart patterns, what are chart patterns? So chart patterns are part of technical analysis. ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलूंगा, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए. ठीक है. Okay, mainly one trend reversal pattern जी. Okay, so chart patterns are the part of technical analysis and it is a graphical representation. कोई चीज को पिक्चर में represented करता है, किसको? Price and volume. Price action and volume is being represented in a graphical format. ठीक है, तो एक पिक्चर में जो भी आपका दिन भर या कितने दिनों का, महीने का, साल का क्या हुआ है स्टॉक प्राइस में, वो एक पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखा देता है. राइट. अब उस पिक्चर से अपने क्या समझ सकते हैं? तो दैट रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजी. वो अपने को बताता है व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट प्राइस. बिकॉज जो भी पैटर्न बनते हैं, इन दोस पैटर्न, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इमोशंस एंड बिहेवियर आर रिफ्लेक्टेड विद दिस चार्ट पैटर्न्स. उनके जो भी इमोशंस हैं, जो भी बिहेवियर है, वो चार्ट पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है. और ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो इट्स नेवर चेंज एंड दैट्स व्हाई दीज पैटर्न्स कीप ऑन रिपीटिंग. तो वो पैटर्न्स बार बार बनते रहते हैं और उसको अपने रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन पैटर्न्स को, कि जब जब ऐसा ऐसा पैटर्न बनता है तब क्या क्या होता है. ठीक है. तो उसी बेसिस पे कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिससे पता चलता है कि ये पैटर्न और उनका किस तरह का पैटर्न है, और वो पैटर्न्स को अपने नाम देते हैं अलग अलग तरह के. तो मेनली जो पैटर्न्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न और एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न. सो देयर इज वन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न and there is one trend continuation pattern. So what is a reversal pattern? So reversal patterns are the patterns which can be formed in uptrend or in downtrend. Okay, it is forming in an uptrend. When it is forming in an uptrend, that is a bearish pattern. It's a reversal pattern, means up से नीचे, ऊपर से नीचे स्टॉक आएगा तो रिवर्स होगा डायरेक्शन. That is bearish reversal. और एक जब नीचे से ऊपर रिवर्स करेगा, the stock was trending down but now it has started moving up, so that is a bullish reversal. So trend reversal can be bearish or bullish. तो उसी के बेसिस के ऊपर bullish और bearish trend reversal के ऊपर there are certain patterns which we'll discuss today, जो अपने को बताते हैं कि trend reversal pattern है. ठीक है. तो वैसे कुछ पैटर्न है जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं. जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चलता रहता है. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न. सपोज कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो कुछ देर वो अपना एक रेस्टिंग पीरियड या कॉन्स्टलेशन पीरियड बोल सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग पीरियड बोल सकते हैं, फिर वापस से वो अपनी चाल को चालू कर देता है. दैट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. या स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, देन वो थोड़ा सा पुल बैक देता है एंड वापस अपना डाउन ट्रेंड चालू कर देता है. दैट इज अ बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न. ठीक है. सो विद दिस नाउ विल डिस्कस कि कौन कौन से पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कौन से हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से हैं. तो बहुत तरह के पैटर्न है,
बट स्टॉकेज ने अभी जो मेन जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, दैट पैटर्न्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन स्टॉकेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो आपको विद द क्लिक ऑफ द माउस इट कैन गिव यू विच स्टॉक हैज फॉर्म विच पैटर्न। अगर कोई भी स्टॉक में पैटर्न बनता है, अगर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है तो आपको ट्रेंड रिवर्सल वाले में आ जाएगा। अगर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है तो जो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हेडिंग के अंदर में वो पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे विद द क्लिक ऑफ द माउस। ओके, सो नाउ we'll discuss. So these are the theory parts मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चार्ट पैटर्न कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और अ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस एंड इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिडिक्ट टारगेट, कि इसका क्या टारगेट हो सकता है। कोई भी पैटर्न बना है तो उसका क्या टारगेट हो सकता है। तो ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो टारगेट वहीं तक ही जाएगा, उसको ओवर अचीव भी कर सकता है या अंडर अचीव भी कर सकता है। ठीक है, बट फिर भी एक जो माना जाता है कि एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ कहाँ तक जा सकता है मिनिमम, तो वो एक अपने पैटर्न से टारगेट निकाल लेते हैं। जो हम लोग वो आज सीखेंगे कि कैसे अपने पैटर्न से टारगेट निकालते हैं। ओके, और स्टॉप लॉस पैटर्न जनरली देते नहीं है, बट स्टिल हम लोग को अपना एक स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी आप काम कर लें, देयर इज नो 100% श्योरिटी इन एनी स्ट्रैटेजी कि ये आपको प्रॉफिट करके देगा। कोई भी स्ट्रैटेजी में 100% श्योरिटी नहीं है, ना मैं दे सकता हूं ना दुनिया में कोई दे सकता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी गेम कि कितने चांसेस हायर है प्रॉफिट होने का या किस डायरेक्शन में जाने का चांसेस हायर है, वो अपने बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितना ज्यादा है। क्या चांस है कि आज बारिश होगी और क्या चांस है कि आज नहीं होगी, तो वैसे क्या चांस है कि ऊपर जाएगा प्राइस या क्या चांस है नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आज प्रिडिक्शन किया कि बारिश होगी सब कुछ देखते हुए, ठीक है, कि बारिश होगी, बट उसके बाद भी नहीं हो सकती है, तो प्रिडिक्शन रॉन्ग हो सकता है। सारे इंडिकेटर्स हमको दिखा रहे थे कि बारिश होगी, बट वो नहीं हुई, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो सेम इन चार्ट पैटर्न्स ऑल्सो, इट्स अ chart patterns or whatever strategy, any strategy you follow, there is never a surety, it is always a probability game. आप हमेशा ये चीज मार्केट में याद रखिएगा, कभी मार्केट में श्योरिटी नहीं है, मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी है। ये चीज को आप अगर ध्यान रख के करेंगे तो आपका एक माइंडसेट अलग होगा, तो एक अलग वे से ट्रेडिंग करना चाहेंगे। ठीक है, आप ये हो सकता है व्यू बना सकते हैं कि ये चांसेस हायर है कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट व्यू यू कैन मेड। ओके, सो So as I said you that price is a supreme in technical analysis. Price जो है वो सबसे important है। फंडामेंटल एनालिसिस जो अपने करते हैं हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना सेल्स है उसका, ठीक है, उसका डेट कितना है, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, सो एवरीथिंग इज दैट इज रिलेटेड विद कंपनी का जो ऑपरेशनल चीज अपने देखते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें अपने फंडामेंटल नहीं देखते हैं, उसमें अपने सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं। कंपनी क्या कर रही है, उसका क्या बिजनेस है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हम लोग वो कुछ नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्राइस एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सो चार्ट पैटर्न्स इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ मास साइकोलॉजी। तो मास साइकोलॉजी मींस जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, ओके, ऑल द पार्टिसिपेंट साइकोलॉजी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। ठीक है, ऑल द साइकोलॉजी ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, जो वो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्पेक्यूलेटर्स हैं, जॉबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया हुआ है, तो सब अल्टीमेटली काम करते हैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। जॉबर्स मीन जो बहुत शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए करते हैं। स्पेक्यूलेटर जो बहुत और से थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए करते हैं। स्विंग पोजिशनल इन्वेस्टर्स, सो डिफरेंट वेज है, बट अल्टीमेटली दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट एंड समहाउ दे आर इम्पैक्टिंग द प्राइस। तो अपने ही प्राइस बनाते हैं, आप खरीदते बेचते हैं या जो भी कोई भी मार्केट में पार्टिसिपेंट खरीद बेचा, उसकी वजह से ही ये प्राइस का पैटर्न बनता है। ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होके वो प्राइस में आ जाती है। ऑल द जितने भी उसके फंडामेंटल्स है, जितने भी आप कोई बोलता है कि एफआईआई बाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, अगर कोई बड़ा बाई कर रहा है तो वो आपको वॉल्यूम में दिख जाएगा, राइट। कोई बड़े ने बाइंग के साथ वॉल्यूम के साथ बाइंग की है तो आपको दिख जाएगा, किसी ने कोई सम बिग प्लेयर्स हैव एंटर्ड बिकॉज देयर विल बी अ जंप इन वॉल्यूम, द कैंडल विल बी बिग, तो इससे आपको समझ में आएगा दैट समवन हैज एंटर्ड। ओके, तो इट इज अ मास साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड रिपीटेड इमोशंस एंड फियर एंड ग्रीड। तो मार्केट में बहुत तरह की साइकोलॉजी होती है,
दैट वन ऑफ द साइकोलॉजी इज फियर एंड ग्रीड। ठीक है, तो फियर एंड ग्रीड ये दो बहुत साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने में अपने फियर में क्या करते हैं, फियर में दो चीज करते हैं। या तो फियर में क्या है, अपना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट कहीं लूज नहीं हो जाए तो मैं फट से बेच दिया, दिस इज अ फियर, राइट। या मैं कोई स्टॉक मैं ऊपर नीचे गिर रहा है बट मुझे सपोर्ट से बाय करने का मौका मिल रहा है, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मेरा फियर है कि ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, आई एम नॉट बाइंग दैट स्टॉक, दैट इज अ फियर। ग्रीड, ग्रीड आपका दो जगह में आ सकता है अगेन। ग्रीड आपका ऊपर में आ सकता है कि स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, मैं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं जंप करके एंट्री ले लेता हूँ, बिकॉज आई विल मिस द अपॉर्चुनिटी, सो आई विल इंटर नाउ। ओके, आई विल मिस द अपॉर्चुनिटी, सो आई विल इंटर नाउ, बिकॉज आई एम बिकमिंग, ग्रीड इमोशन इज कमिंग इन मी, ताकि वो मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर पाऊँ। दूसरा ग्रीड फैक्टर कब आता है, जब आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, आपका टारगेट भी अचीव हो गया है, बट आप वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं मुझे और लेना है, मुझे और ऊपर बेचना है, और ऊपर बेचना है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली वो स्टॉक्स रिवर्स कर जाता है, एंड यू आर नॉट एबल टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीड, लोअर लोअर में भी ग्रीड आता है, ऊपर में भी ग्रीड आता है। तो और लोअर में कब ग्रीड आता है, कि लोगों को लगता है कि स्टॉक प्राइस चीप हो गया, मैं ले लूं जल्दी से, वरना अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी क्योंकि मुझे सस्ता नहीं मिलेगा। तो दे स्टार्टेड दे फॉलिंग नाइफ, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, मतलब जो स्टॉक प्राइस गिर रहा है मैं उसको और ले लिया ताकि मेरी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए, यहाँ से बढ़ जाएगा तो मैं लो प्राइस में खरीदने से मिस कर दूंगा, बट वो स्टॉक और नीचे जाता रहता है और अपने ऊपर में लेके थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये तरह तरह के इमोशंस है जो मार्केट में आपके चार्ट पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो रिवर्सल पैटर्न आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंटिन्यूएशन पैटर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वेयर द मार्केट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, so a continuation pattern can be considered as a pause during a prevailing trend। एक pause हो जाता है, तो मैं बोला ना एक रेस्टिंग हो जाता है, जब अपने बहुत भाग जाते हैं तो एक रेस्ट लेते हैं, एंड अगेन देन वी स्टार्ट रनिंग, so that is with the continuation pattern। okay, now to name with some, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न है, तो पहला मैं ट्रायंगल्स पैटर्न आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, तीन तरह के ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न। ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या हो सकता है, ये आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है या रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। ओके, ascending triangle is a bullish pattern, is a bullish continuation pattern। okay, and descending triangle is a bearish continuation pattern। ठीक है, तो एक एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं अपने। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज एन इट कैन बी अ बुलिश और इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न, अप ट्रेंड में बन रहा है। सो एक ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड था, and then you can see it is formed by two converging lines, two converging lines, one is downward sloping line and other is the, just hold it, one is this downward sloping line and one is upward sloping line। ठीक है, तो आपने देखा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है यहाँ और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है, बाय लोअर हाइज, मींस लोअर हाइज मींस ये हाई जो है इस हाई से लोअर है, and this high is lower than this high and this high is lower than this high। if we connect this lower highs तो हम लोग क्या मिलेगा, एक downward sloping line, right। and this line is upward sloping line is formed by connecting higher lows। higher lows means ये high जो है इस high से ऊंचा है, ये high जो है इस high से higher है, ये high जो है इस high से higher है। तो if we connect the higher highs, okay, higher lows, तो अपने को upward sloping line मिलेगी। clear, so there is one downward sloping line and there is one upward sloping line। you can see the range is becoming narrow। एक रेंज ये अप ट्रेंड में स्टॉक था, अब क्या हुआ, रेंज जो है वो नैरो होने लगा है, रेंज आपका छोटा होने लगा है। सो दिस नैरोइंग रेंज मींस देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम। जो यहाँ पे एक मोमेंटम था, एक स्पीड से स्टॉक भागा था, तो वो मोमेंटम आस्ते आस्ते लूज होने लगा है, जो बाइंग का मोमेंटम था वो लूज होने लगा है, एंड देयर इज अ नैरोइंग ऑफ रेंज एंड these two line converges। okay,
So now when the breakout will happen? The breakout will happen once the stock closes above this line, above the upward sloping line. ठीक है, जब यहाँ पे स्टॉक लाइन के ऊपर बंद हो जाएगा, so the breakout will be confirmed. Okay, confirm means यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है. अब इसको फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्रेकआउट को फर्दर कैसे कंफर्मेशन किया था, क्या क्या चीज देखनी है अपने को, जिससे अपने को पता चल सकता है कि ये राइट ब्रेकआउट हो सकता है. फिर मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी है कि ये राइट ब्रेकआउट हो सकता है. ठीक है, उसके भी चांसेस है कि हाँ यहाँ से राइट ब्रेकआउट होने का ज्यादा चांस है. उसके लिए अपने क्या क्या देखेंगे. राइट, तो स्टॉक को सबसे पहले इस लाइन के ऊपर क्लोज होना होगा. राइट, इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो ये क्या होगा, अपसाइड ब्रेकआउट. ठीक है, तो जब भी ये अपसाइड ब्रेकआउट होगा, इट विल कॉल अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. तब ये क्या बनेगा, आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बने, क्योंकि प्रायर ट्रेंड, पहले का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था. ठीक है, फिर वापस से ये अपसाइड ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है. सो वी विल कॉल दिस एन कंटिन्यूएशन पैटर्न. राइट, नाउ व्हेन इट विल बी कॉल्ड, व्हेन इट विल बी अ रिवर्सल पैटर्न, अगर ये स्टॉक इसके नीचे बंद कर देता है, इस लाइन के नीचे बंद कर देता है, ओके, देन इट विल कॉल अ रिवर्सल पैटर्न. बेयरिश रिवर्सल मींस अप ट्रेंड अब रिवर्स होके ये स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, कि अब ये नीचे जाने का चांस है. ओके, सो नाउ तो ये चीज तो आपको मिल जाएगा स्टॉकेज के ऐप में कि स्टॉक ने, कौन से स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, वो आपको मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इसका क्या टारगेट होगा, व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक. ठीक है, तो अपने टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द टारगेट. विल टेक द हाई, ओके, दिस हाई, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा इस ट्राइंगल के बीच में, जो सबसे हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस अपने को कौन सा दिख रहा है, ये वाला. ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, बट सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कौन सा है, दिस लाइन का जो डिस्टेंस है वो सबसे हाईएस्ट है. ओके, so we'll take the high of this point. Suppose the high of this point is 200. Okay, I'm just taking it as for the sake of understanding. The high of this point is 200. Okay, and the low of this point is 150. Okay, तो इसका high है 200 और इसका low है 150. So what is the difference of high and low? So 250 minus 150, that is 50 rupees का इसका डिफरेंस है. राइट, 50 रुपीज का. अब ये 50 रुपीज को वी विल एड अप टू दिस ब्रेकआउट पॉइंट, विल एड अप दिस टू द ब्रेकआउट पॉइंट. सो सपोज द ब्रेकआउट पॉइंट इज 170. यहाँ पे जो प्राइस जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पे प्राइस क्या था 170. तो एट दिस 170 वी विल एड दिस 50 रुपीज. ओके, सो मैं 170 प्लस 50, दैट इज 220. तो 220 विल बी माई टारगेट फॉर दिस stop. Clear? So now the next question is, what will be the stop loss? Okay, so as I have told you earlier that patterns do not give you stop losses. However, we need to put stop losses to avoid our losses if we go wrong, to reduce our losses, not avoid, to reduce our losses if the pattern does not work. तो कहीं तो अपने को छोटा स्मॉल लॉस लेके निकलना होगा कि मैं गलत पड़ गया हूं, मैं इससे निकल जाता हूं. तो उसके लिए अपने स्टॉप लॉस, there are different ways of keeping. So the stop loss depend on your risk capacity. आप कितना मार्केट में रिस्क ले सकते हैं. तो किसी का 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लेने का रिस्क हो सकता है, किसी का 2,000 का, किसी का 50,000 का, राइट, किसी का 5 लाख का. तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेसिटी, हाउ मच स्टॉप लॉस यू कैन टेक. सॉरी. ओके, एंड इफ यू कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज वाइज, मैंने अमाउंट के हिसाब से कहा, परसेंटेज के हिसाब से कोई 3% का स्टॉप ले सकता है, कोई 5 का, कोई 10 का, कोई 20 का. राइट, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क कैपेसिटी यू कैन पुट योर स्टॉप लॉसेस. तो मैं 2-3 तरीका यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जिससे यू कैन आपको कौन सा सूट करता है उसके हिसाब से यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस. ओके, तो फर्स्ट विच आई सजेस्ट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मीन्स आपको अगर यहाँ पे 50 रुपए का मैंने टारगेट निकाला, कितना 50 रुपए का. ओके, दैट यू विल बी गेनिंग 50 रुपीज. तो उस हिसाब से आप अपना लॉस जो है, स्टॉप लॉस जो है, वो 25 रुपए नीचे रख सकते हैं. दैट इज 25 रुपीज डाउन फ्रॉम योर एंट्री प्राइस. इफ यू आर एंटरिंग एट 170, okay, so means 145 will be your stop loss. In this case 170 is the breakout point. Okay, my target is 230.
my stop loss will be 145, that is 25 rupees down from my entry point. And तो इससे क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2. मींस मैं अगर 25 रुपए का लॉस कर रहा हूं तो मैं अगर राइट पढ़ता हूं तो मैं 50 रुपीज 2 टाइम्स पाऊंगा. ठीक है. और इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर मैं ऐसा 10 या 20 या 50 जितनी भी ट्रेड करता हूँ, सपोज 10 ट्रेड्स करता हूँ, इवन आई एम राइट इन 50% ऑफ दिस 50% स्टॉक्स में भी मैं अगर राइट पढ़ता हूँ तो आई विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. तो मैं प्रॉफिटेबल यहाँ से प्रॉफिट निकाल के ही जाऊंगा. अगर मैं 50% जो प्रोबेबिलिटी होती है, अपने अगर कॉइन टॉस करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, द प्रोबेबिलिटी इज 50%. सो इन दिस केस आल्सो आई एम taking a probability of getting being right 50%. सिर्फ आप 10 ट्रेड लिए, आप 5 में राइट पड़े और 5 में रॉन्ग पड़े, और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 का है तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा. ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस टारगेट एंड स्टॉप लॉस के ऊपर? अच्छा, एक और मैं बात बता दूं पहले. तो एक स्टॉप लॉस का मैंने आपको वे बताया, रिस्क रिवॉर्ड. दूसरा वे मैं बता रहा हूं कि जब भी अगर स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल जो होती है, ब्रेकआउट कैंडल के अगर नीचे प्राइस बंद हो जाता है, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस बंद हो जाता है, देयर यू कैन टेक योर स्टॉप लॉस इफ इट क्लोजेस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल. थर्ड वे, इफ इट क्लोजेस बिलो दिस लाइन, अगर ये डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे अगर प्राइस बंद हो जाता है, देन ऑल्सो यू कैन एग्जिट. ठीक है. तो जो भी आप स्टॉप लॉस रखें, बट ये देखें कि आपका स्टॉप लॉस जो है 1:2 के ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं जाए. अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 1.5:2 ले सकते हैं. ठीक है. बट फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर आई विल से 1:2 इज suggested. Okay. So this can be a continuation pattern if it gives a breakout upside. If it gives a breakdown downside, it will be a reversal pattern. Okay. Now these are the some old stockage pattern just मैंने explanation के लिए यहाँ पे दिया है. I'll also go to a live patterns जो अभी बने हाल फिलहाल में, और उसमें से अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करेंगे. ओके. RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस BSE शेयर, वी विल डिस्कस RSI एंड एवरीथिंग. जस्ट पहले अपने जस्ट पैटर्न्स के बारे में कर लेते हैं, देन फर्दर इसको कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं वो भी अपने डिस्कस करेंगे. आई रिक्वेस्ट टू द पार्टिसिपेंट्स टू होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस, ताकि मैं एक बार कंप्लीट कर लूं, देन आई टेक द क्वेश्चंस. ठीक है. जितने भी क्वेश्चंस होगा तो एक बार में ले लूंगा, अदरवाइज द फ्लो विल गेट डिस्टर्ब. ओके. आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखिए. आई डेफिनेटली टेक द क्वेश्चंस. ओके. ओके. सो इन दिस केस यू कैन सी देयर इज अ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया प्राइस ने. ओके. एंड उसके बाद इट हैज गॉन अप, इट हैज गिवन अ रैली. ओके. सो ये अपसाइड ब्रेकडाउन, अपसाइड ब्रेकआउट था. वैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे क्या था, डाउनसाइड ब्रेकडाउन हुआ था, जिसमें ये आपका रिवर्सल पैटर्न बन गया. ओके. ये आपका रिवर्सल पैटर्न बन गया था. ओके. ये ओल्ड चार्ट्स है. ठीक है. दिस आर नॉट न्यू चार्ट्स, क्योंकि ये पीपीटी पहले का बनाया हुआ है. तो आई ट्राई टू पुट सम न्यू चार्ट्स, ताकि न्यू चार्ट्स डाल दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप रिलेट कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज असेंडिंग ट्रायंगल. तो अपने पहले असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल पैटर्न डिस्कस करने के बाद आई विल मूव टू द स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न में, प्रो एनालिटिक्स में. उसमें जाके विल डिस्कस सम रिसेंट पैटर्न जो लाइव में भी आए हैं. ओके. सो नाउ दिस इज असेंडिंग पैटर्न एंड दिस इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न. और ये वन साइड ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा. अगर ऊपर नहीं जाता है तो वो पैटर्न क्या होगा, इट विल बिकम इनवैलिड. द पैटर्न विल बिकम इनवैलिड. ठीक है. तो दिस पैटर्न इज ऑल्सो फॉर्म बाय टू लाइन्स. यू कैन सी वन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, तो वैसे यहाँ पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनी है जो आपके हायर लोज को ज्वाइन की है. एंड देयर इज वन फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन सी. So this flat horizontal line is acting as a resistance. Every time the price is touching this point, sellers are becoming active and they are selling the stocks, and stock is coming down here. And again, buyers are becoming active here, giving support to the price, and price again moving up. So again the sellers यहाँ पे आए, तो again buyers ज्यादा bullish थे, तो उन्होंने price को और नीचे जाने नहीं दिया, तो यहीं पे buyers आ गए. तो buying जो ये higher lows बनाता गया. तो स्टॉक्स का क्या हुआ, मोमेंटम, जो सेलिंग का जो मोमेंटम था
पहले देखिए सेलिंग का मोमेंटम, ये कैंडल बड़ा था, सेलिंग का मोमेंटम लूज होता गया, सेलिंग मोमेंटम लूज होता गया, लूज होता गया, एंड फाइनली द नैरो रेंज, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया। ओके, जब यहाँ पे डिमांड ऑन सप्लाई का बैलेंस रहता है तो स्टॉक ट्रेड इन अ रेंज व्हेन देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इट गिव्स अ ब्रेकआउट। तो जब भी ब्रेकआउट होता है या बहुत बड़ा मूवमेंट आता है स्टॉक में, दैट इज अ इम्बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट में हमेशा जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, राइट? तभी तो ट्रेडिंग होती है। अगर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ तो 100 रुपए में कोई बेच रहा है तभी तो मैं खरीद रहा हूँ, राइट? तो मैचिंग हो जाता है, तो ये तो बैलेंस हमेशा ही है। बट इम्बैलेंस कब होता है? इम्बैलेंस तब होता है जब लोग हायर प्राइस में बाय करने के लिए रेडी हो गए, व्हेन दे आर पीपल आर एग्रेसिव, जब उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है दैट प्राइस विल गो अप, दे आर इवन रेडी टू बाय, यू नो, एट अ मार्केट ऑर्डर्स, मार मार के ऊपर में भी ऊपर लेते चले जा रहे हैं। ओके, दे हैव बिकम नाउ एग्रेसिव ट्रेडर्स। ओके, अगर जो ऊपर 100 में खरीदने वाला मैं सोच रहा था, आज मैं 101 में भी खरीद लूंगा, 102 में भी खरीद लूंगा, 100, तो माय एग्रेशन, यू नो, बिकम एक्टिव। एंड तो डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, एट एवरी प्राइस देयर इज अ डिमांड व्हिच इज लीडिंग द प्राइस टू मूव अप फर्दर। तो प्राइस इससे और ऊपर भाग रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस होगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हियर वंस द स्टॉक क्लोजेस अबव दिस लाइन इट विल बी अ ब्रेकआउट। एंड हाउ वील कैलकुलेट द टारगेट? टारगेट इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम, द वाइडेस्ट हाईएस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बीच में हाईएस्ट डिस्टेंस क्या है? हाईएस्ट डिस्टेंस क्या है इस ट्राइंगल के बीच में? उसका डिस्टेंस अपने यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, सपोज मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज यहाँ का प्राइस 200 है और यहाँ का 150 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 50 रुपीज का। तो 200 जो ब्रेकआउट पॉइंट था प्लस 50 विल गिव मी अ टारगेट ऑफ 250 रुपीज। ओके, स्टॉप लॉस का लॉजिक सेम है। आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे अगर बंद कर देता है then we exit. Okay, now the next pattern, so this is an example of ascending triangle. Okay, तो एक चीज और बताना मैं भूल गया, कोई भी पैटर्न के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट टच होना जरूरी है। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है? तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पैटर्न टू बी फॉर्म्ड। ओके, तो ascending triangle का ऑपोजिट क्या है? डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और ये डाउनसाइड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड डाउन था, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट किया एक रेंज में, नैरो रेंज में, ठीक है? एंड वापस से अपना जो डाउन ट्रेंड था वापस से यहाँ ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू किया। तो दिस इज अ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे कैसे बना? जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल ऊपर में लाइन थी, वैसे यहाँ पे एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल नीचे में लाइन है। दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लाइन। ये क्या, एक सपोर्ट लाइन बनी है। एवरी टाइम द प्राइस इज कमिंग है, देयर इज द स्टॉक में सपोर्ट आ रहा है, प्राइस में बाइंग आ जा रही है। बट अल्टीमेटली जब ये सपोर्ट टूट गया तो पीपल बिकम एग्रेसिव एंड दे स्टार्ट सेलिंग, सो प्राइसेस आर पुश डाउन फर्दर, तो प्राइसेस और नीचे जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर की लाइन जो बन रही है क्या है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, जिससे पता चल रहा है कि प्राइस हायर हाइज नहीं बना पा रहा है, इट इज मेकिंग लोअर हाइज। तो जो लास्ट हाई था इस हाई को तोड़ नहीं पाया, ठीक है? इस हाई को, ये हाई तोड़ नहीं पाया, फिर ये हाई इस हाई को तोड़ नहीं पाया, तो द मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, बाइंग का जो मोमेंटम है वो डिक्रीज होने लगा। ओके, तो देयर इज अ शिफ्ट इन द सेंटीमेंट एज द प्राइस ब्रेक्स बिलो दिस सपोर्ट लाइन, तो द सेंटीमेंट चेंजेस। ओके, तो जो सपोर्ट यहाँ पे जो ले रहा था, बाइंग आ रहा था, वो शिफ्ट चेंज होके वो प्राइस क्या हो गया? बेयरिश हो गया। ओके, so this is descending triangle. Now how to calculate target? Same चीज, we'll take the highest distance between in the triangle के बीच में जो highest gap होगा, distance होगा vertical, उसको लेंगे और यहाँ पे अपने ब्रेकडाउन पॉइंट से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज यहाँ का प्राइस 150 है और डिफरेंस है 50 रुपीज का, तो 150 minus 50 that is 100 rupees will be my downside target. Okay, that will be my downside target. ठीक है, now one important चीज
मैं आपको बताना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी स्टॉक, कोई भी पैटर्न आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्टॉक में अगर बुलिश पैटर्न आया है, ठीक है, तो आप उस पैटर्न में देखेंगे वो स्टॉक कौन सेक्टर को बिलोंग करता है, उस सेक्टर का उस सेक्टर, वो सेक्टर बुलिश है या बियरिश है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट बियरिश है या बुलिश है। नाउ अब मैं चार्ट पैटर्न से हट के आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप और चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आपका जो एंट्री ले वो राइट एंट्री होने का और चांसेस बढ़ जाए। अगर इसका 70% राइट है, पैटर्न अगर 60 to 70% अगर राइट पड़ता है, तो मैं उसको 80-90% कैसे लेके जाऊं कि मैं राइट पड़ जाऊं, ठीक है। उसके लिए, ठीक है, यू हैव टू सी द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। ओवरऑल मार्केट क्या है, लाइक अब प्रेजेंट का सिनेरियो अगर आप लेते हैं, तो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो इज बुलिश, राइट। अगर बुलिश स्टॉक, मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है, नाउ अगर मैं जो स्टॉक ले रहा हूं, ठीक है, उस स्टॉक का सेक्टर क्या है, बुलिश है या बेयरिश है। सपोज मार्केट इज बुलिश, अभी जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर अभी थोड़ा चल रहा है, तो अगर फर्टिलाइजर सेक्टर क्या है, बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है, बुलिश है, मार्केट इज बुलिश, फर्टिलाइजर सेक्टर इज बुलिश, जस्ट आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल, एंड द स्टॉक सपोज दीपक फर्टिलाइजर, उसने भी मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक इज बुलिश, सेक्टर इज बुलिश, मार्केट इज बुलिश, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय, राइट। बट अगर अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, मार्केट बेयरिश होता, सेक्टर भी बेयरिश होता, और दीपक फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल मुझे अपसाइड ब्रेकआउट दिया होता, तो क्या मैं वो ट्रेड लेता? मैं वो ट्रेड नहीं लेता, मैं अवॉइड करता, क्योंकि मार्केट इज अगेंस्ट मी, सेक्टर इज अगेंस्ट मी, सिर्फ स्टॉक ने मुझे एक ब्रेकआउट दिया है, तो दैट कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, जस्ट कोई पर्टिकुलर रूमर की वजह से वो ब्रेकआउट हो सकता है, राइट। तो उसको मैं अवॉइड करूंगा, राइट। सो दिस इज हाउ आप इसको अवॉइड, ये आप कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं, आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अगर काम करें, तो ये चीज को ध्यान रखें, नॉट ओनली फॉर चार्ट पैटर्न, एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और एनी ब्रेकआउट यू आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये है, तो अब ब्रेकआउट तो आपने देखा, आप फर्दर इसको और भी कैसे एनालाइज कर सकते हैं मैं अभी वापस आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट आई मूव टू, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ओके, एंड आई एम मूविंग टू चार्ट, स्टॉकेज का चार्ट पैटर्न, ओके। तो आई हैव चेंज माय स्क्रीन, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी under under Pro Analytics, there's a tab called Chart Patterns, right? अच्छा, just going, before going to that, मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ। विच टाइम फ्रेम कैंडल, टाइम फ्रेम कैंडल इज, अभी जो अपना बना है डेली टाइम फ्रेम कैंडल है। हाउ मेनी टच रिक्वायर्ड इन ट्राइंगल, एटलीस्ट मिनिमम 2, ओके। RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन BSC शो W पैटर्न ब्रेकआउट, ठीक है। हाउ मेनी टच रिक्वायर्ड, does RSI have two different types of divergence, regular and hidden? Yes, it has two, regular and hidden divergence भी होते हैं। If so, how to identify them? So that RSI वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, that is a different topic, okay? Recordings आपको मिल जाएगी या क्लब में, okay? Okay. So now आई एम ओपनिंग दिस चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो इसमें आपने देखा देयर इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल इज मार्क्ड इन रेड, इट मींस इट्स अ बेयरिश पैटर्न। ascending triangle is marked in green, it means it's a bullish pattern, okay, and this is marked in yellow or orange, okay, because it can either be a bullish or it can be bearish। अगर अपसाइड कंटिन्यूएशन हुआ देन इट इज अ बुलिश, अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो गया तो देन इट इज अ रिवर्सल पैटर्न एंड इट इज अ बेयरिश पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रीसेंट एंड पास्ट लिखा हुआ है। रीसेंट मींस जो आज हाल फिलहाल में जो स्टॉक्स अभी इसमें आए हैं एंड दे आर ओपन टू ट्रेड, ओके। एंड पास्ट मींस जो आके इसमें से निकल चुके हैं, आइदर इनका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, या इनका टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है, या ये बहुत समय से थे और ना टारगेट ना प्रॉफिट अचीव हुआ, तो एक एल्गो लॉजिक इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो रिसेंट से पास्ट में चला जाता है, ओके। देन यू कैन सी देयर इज अ फिल्टर, यहाँ से फिल्टर से यू कैन सेलेक्ट ऑल स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स, NSE स्टॉक्स, BSE स्टॉक्स, FNO स्टॉक्स। तो जो भी स्टॉक्स आप चुनना चाहेंगे वो सारे स्टॉक्स को कवर कर लेगा। बाय डिफॉल्ट इट इज मेजर स्टॉक एंड इट इज रिकमेंडेड टू डू योर एनालिसिस इन रिकमेंडेड स्टॉक्स, ठीक है।
इन मेजर स्टॉक्स, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है, बहुत काफी बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड इट इज नॉट इजी टू मैनिपुलेट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। ओके, तो बहुत से छोटे छोटे स्टॉक्स जो होते हैं स्मॉल कैप के, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो उन लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट जिनका बाद बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो उनमें मैनिपुलेशन इज नॉट दैट इजी, तो आप ट्रैप से बच सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी देयर आर 25 स्टॉक्स जो रिसेंट में है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। असेंडिंग में 3 स्टॉक्स है, डिसेंडिंग में 0 स्टॉक्स है। क्यों 0 है? क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो दैट वाई देयर इज नो स्टॉक इन द डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, तो अपने यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हियर यू कैन सी कौन कौन, ये पैटर्न अपना FSN ई कॉमर्स, ठीक है, ये 24 जुलाई को आया था NSE एक्सचेंज में। क्या प्राइस पे आया था? 184.38। अभी LTP चल रहा है 182.98। ठीक है, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 24 जुलाई को आया था, 5259 पे आया था, 5703 अभी इसका प्राइस चल रहा है। राइट, तो एक एक पैटर्न खोलते हैं। सो नाउ anybody can tell me what will be the target of this stock? Let's try to find the target. Just बाद में अपने और पर डिस्कस करेंगे। Just try to find the target. तो आप लोग भी फाइंड कीजिए, मैं भी फाइंड करता हूँ, देन विल डिस्कस ऑन दी चैट के सबका क्या क्या टारगेट आया। आप लोग भी प्लीज फाइंड कीजिए और मैं भी फाइंड कर रहा हूँ, so that everybody is clear how to find the target. This is very important. I'll request all to participate in this. मेरा टारगेट आ गया है, आप लोग का भी अगर टारगेट आया है तो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, लीना जी 222, 225, प्रतीक जी 225, अशोक कुमार जी 230, जेम्स जी 210, प्रतीक जी का मैंने बताया, seems to be going down, इनेजी शुड बी वेट। ठीक है, अच्छा 250 कविता जी, भाविन जी 230। ओके, ओके, और प्रवीण कुमार जी 50 प्लस करंट मार्केट प्राइस। ओके, करंट मार्केट प्राइस में 50 ऐड किया। ओके, सचिन जी 225, बिलाल शेख जी 206 एंड 243, 206 सेकेंड 243। ओके, स्टॉप लॉस इज 27, टारगेट 182 प्लस 54, दैट इज ओके 236, स्टॉप लॉस 27। अश्वनी जी, नितिन जी 206, नहीं नितिन जी 225, प्रवीण जी पे हो गया। अच्छा, आईफोन 250, रियलमी 300, कविता जी 217, अमरनाया जी 245, अनीस जी 240। ठीक है, तो सबका मुझे लगता है टारगेट ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। मैं भी अपना भी टारगेट शेयर कर दे रहा हूँ। तो मेरा टारगेट आया है 243 रुपीज। ओके, सो वेरी गुड, ऑल हैव आई थिंक मोस्टली हैव आंसर्ड परफेक्टली। ठीक है, सबका वेरी क्लोज है। तो कैसे मैंने किया, मेरा भी डिफरेंस आया 50 रुपीज का, मैंने ये हाई लिया। ओके, दिस हाई दैट इज 195.50, एंड जो हाईएस्ट डिस्टेंस है इनके बीच में, ये और ये का, मैंने इसका लो लिया जो कि अराउंड 136.50 है। तो दोनों का डिफरेंस आया 50 रुपीज। सो मैंने ये 50 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं राइट है ब्रेकआउट, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट या रॉन्ग ब्रेकआउट। फर्स्ट ये मेरा टारगेट होगा। राइट, तो अब मेरा स्टॉप लॉस जैसे क्या था,
अगर 50 रुपीज का आ रहा है तो मैं 25 रुपीज का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो 184 रुपीज मेरा ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेकआउट लेवल मेरा था 184 माइनस 25, दैट इज 159। सो 159 इज कमिंग माई स्टॉप लॉस, जो कि इसका लो है, इसका लो है 172 और इस कैंडल का लो है 172 ही है, इसका कैंडल 170। सो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप कहां तक ले सकते हैं? 159 इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो और मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, तो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। तो जब ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे बंद हो जाए, ओके, तो आप ले सकते हैं। तो मैं लो के नीचे, तो इसके पास और छोटे छोटे से लो मुझे दिख रहे हैं, आसपास में ही है, तो मैं इसका भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस इस 172 का भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो आप 159 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो 172 का स्टॉप ले सकते हैं, या यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, और 170। सो बेस्ट स्टॉप लॉस मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 170, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या है, बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइसेस ने, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक देना चालू किया। तो दिस 170 विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो मैं 170 का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉप लॉस आई विल कीप इन दिस केस विल बी 170 एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस इन दिस केस आई विल कीप 159। ठीक है, और जो और बड़ा रिस्क देख सकते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, वो अगर इस कैंडल यहाँ इसके नीचे अगर बंद कर देता है, इस लो के नीचे, दैट इज अराउंड 145 148 के नीचे अगर बंद कर देता है, तो वहां पे निकलेंगे, क्योंकि सबकी रिस्क कैपेसिटी अलग अलग है, तो सब अलग अलग जगह निकल सकते हैं, सब अलग अलग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आपका यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा, और आपके लिए अगर रॉन्ग पड़ते तो स्मॉल लॉस में निकलेंगे। नाउ नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यू नो एक्सपेक्ट करें कि राइट ब्रेकआउट होगा कि नहीं। तो राइट ब्रेकआउट जनरली होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्राइस को इसके ऊपर क्लोज होना होगा, अपने ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बंद होना होगा। प्राइजेस को अपने हाई पे बंद होना चाहिए। द प्राइस शुड क्लोज एट द हाई ड्यूरिंग द ब्रेकआउट and there should increase in volume when the price is going giving a breakout। तो वॉल्यूम में बढ़ना चाहिए। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे अपने को समझ में आता है दैट देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हुआ है, एंड बिग कैंडल बुलिश कैंडल हैज बीन फॉर्म विद बर्स्ट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जंप हुआ है। ओके, प्राइजेस हाई में बंद हुए, और एक दिन आप और वेट कीजिए। ठीक है, जैसे इस दिन ब्रेकआउट हुआ है, तो वेट प्राइजेस टू गो अबव दिस कैंडल। ओके, आफ्टर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो प्राइस को मैं इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर वेट करूंगा जाने का। जब ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं वहां पे पोजीशन ले सकता हूँ। नाउ पोजीशन लेने के बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ट्रेड मैनेजमेंट। आप ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, हाउ यू आर मैनेजिंग द ट्रेड, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग द ट्रेड। ठीक है, तो अब ट्रेड मैनेजमेंट में क्या हो गया आपका, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर टारगेट आपका अचीव हो गया तो आप टारगेट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको लगा कि नहीं ये और भी ऊपर जाएगा, तो यू कैन बुक 50% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, 50% पोजीशन आप बुक कर लिए, 50% होल्ड कर लीजिए। तो अलग अलग तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब आप ये आपका टारगेट अगर अचीव हो गया, अगर मेरा टारगेट जो टारगेट था वो अचीव हो गया, 243 245 का जो भी टारगेट अचीव हो गया, अभी सपोज 243 हो गया प्राइस, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आ सकता हूँ, 185 का ला सकता हूँ स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस अपना और अपना 210 पे ला के रख सकता हूँ कि मैं अब यहाँ से लॉस नहीं होगा। आइदर मैं प्रॉफिट, मैं 50% तो बुक कर चुका हूँ, बाकी 50% या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा अगर प्राइस नीचे आता है, या अगर ये फर्दर मूव करता है तो बाकी 50% में मैं और प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ओके, लीना जी प्लीज रिपीट स्टॉप लॉस। ओके, सो आई रिपीट स्टॉप लॉस इन दिस केस। So stop loss, as I've told you earlier, that stop loss depend on your risk capacity, but still you have to identify ways by which you can place your stop losses. Like in this case, my target is, अगर 50 rupees is my target, so I'll take a stop loss is 25 rupees.
दैट इज मैक्सिमम टारगेट स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज डाउन साइड मैं स्टॉप लॉस लूंगा. What other stop loss I can place? I can place a stop loss. You can see there is a support level here. You know, every time the stock has taken support near 170 level. Okay, near 170 level the stock has taken support. तो यहाँ से जब अगर इसके नीचे बंद हो जाता है तो मैं यहाँ के स्टॉप लॉस ले सकता हूँ. I'll take stop loss below this. Okay. So now अगर मुझे अब स्टॉप लॉस को स्टॉक लेना है, अगर मुझे लेना है तो मैं देखूंगा वो स्टॉक में मार्केट ओवरऑल क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल मार्केट कंडीशन. इफ स्टॉक ओवरऑल मार्केट कंडीशन इज बुलिश बट स्टॉक इज गिविंग अ बेयरिश ब्रेकडाउन, आई विल अवॉइड बेयरिश ब्रेकडाउन. तो मुझे दो स्टॉक्स मिल रहे हैं, एक बुलिश और एक बेयरिश. एक ने ऊपर का ब्रेकआउट दिया है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मुझे नीचे का ब्रेकडाउन दिया है. तो एंड मार्केट इज बुलिश एंड जो स्टॉक आया है उस सेक्टर भी बुलिश है, तो मैं वो स्टॉक का बुलिश ब्रेकआउट में बाय करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा. राइट. अगर मुझे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है अभी और एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है तो मैं असेंडिंग ट्रायंगल में बाय करूंगा. ठीक है, मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल में सेल नहीं करूंगा बिकॉज द ओवरऑल मार्केट कंडीशन इज बुलिश. राइट. तो ये है अगेन Nuvoma Health Management, you can see here. So you can see how beautifully the long bullish candle के साथ it has given a breakout. That's what I was speaking in the last class. अभी जो मैं इससे पहले बात कर रहा था, एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम जंप हुआ. ओके, वॉल्यूम जंप हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस इसके ऊपर जाने लगा एंड सो इसको अपने राइट ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, बट इसमें टारगेट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा अपने को. टारगेट अगर देखेंगे इसका हाई है यहाँ पे 55,500 एंड लो इज 4,100. ओके, फिर भी अराउंड 1,500 का टारगेट अपने को यहाँ पे अराउंड मिल रहा है. तो अगर इसमें ब्रेकआउट पॉइंट है 1,500 अगर अपने ये ऐड करेंगे तो अराउंड 7,000 का टारगेट बन रहा है अपने को. तो 7,000 का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राइट. सो नाउ व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, तो जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो ब्रेकआउट, तो इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं. ओके. तो बट ये स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 1,500 का हो जाए बट अगर स्टॉप लॉस 700 पॉइंट से ज्यादा हो जा रहा है, 750 पॉइंट से, तो मैं और भी छोटा स्टॉप लॉस लूंगा, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस कर लूंगा. ओके. तो ये जो स्टॉप लॉस टर्म जो है इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, डिपेंडिंग कितना कैंडल की कितनी बड़ी ब्रेकआउट दिया है. okay? How the candle has given a breakout. So it is very subjective and I suggest it should never be more than 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जो बहुत एग्रेसिव है वो 1:1.5 तक कर सकते हैं. ओके. तो ये दिया था इसने, ब्रेकआउट दिया था अभी 19 जुलाई को बजाज ऑटो ने दिया है. सो इन दिस केस यू कैन सी इन दिस केस इसने क्या दिया, डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है. बजाज ऑटो ने क्या दिया है, डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है. ठीक है, तो डाउनसाइड ब्रेकडाउन देने के बाद एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, काफी आई थिंक एक ही दिन में इसने टारगेट अपना अचीव कर लिया. यहाँ पे अगर इसका टारगेट देखेंगे हाई एंड लो को करेंगे तो आई थिंक इन अ सिंगल डे इट हैज अचीव द टारगेट. यहाँ पे नॉट अ सिंगल, हाँ, तो यहाँ पे इसने इस दिन ब्रेकडाउन दिया. ठीक है, और उसके बाद उसके दूसरे दिन थर्ड डे इसने यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लिया. नाउ इट इज बाउंसिंग बैक. तो क्या अभी मुझे ये लेना होगा? अभी मैं इसमें सेल कर सकता हूँ? नहीं. अभी मैं इसमें बाय कर सकता हूँ? नहीं. तो अभी ये मेरे लिए, मैं इसमें ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा. आई विल अवॉइड दिस स्टॉक राइट नाउ. ओके. तो ये यू कैन ऑल्सो सी देयर इज सम पास्ट में जो स्टॉक्स आए हैं. सॉरी. ठीक है, सो पास्ट में स्टॉक्स इसमें आए हैं बहुत सारे. तो जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए आई थिंक दे कैन सी द पास्ट, और जिन्होंने लिया हुआ है उनको रिसेंट भी दिखता है. ठीक है, तो ये पास्ट में आपका आया था जस्ट डाई, नॉट बहुत ज्यादा पास्ट नहीं हुआ है, जस्ट 18 जुलाई को आया था. तो दे इस दिन आया था.
ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, गैप अप के साथ दिया। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा जंप कर चुका है ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नेक्स्ट डे इसके, क्योंकि इस दिन आपको अलर्ट आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट इसी दिन ऊपर बंद हुआ है, तो आपको नेक्स्ट डे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो प्राइस इज ऑलरेडी जंप अ लॉट, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये स्टॉक अगर रीटेस्ट करके ब्रेकडाउन लेवल के पास आता है, यू नो, बहुत से स्टॉक अपने को रीटेस्ट भी करते हैं, ये भी एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है। तो कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देखने के बाद अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके वापस से जब बढ़ता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। अभी नहीं बाय करके, अगर ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास यहाँ आता है, रीटेस्ट करता है, देन यू कैन इनिशिएट अ बाय इन दिस स्टॉक। ओके, एमएमटीसी 15 जुलाई को आया था, तो यहाँ पे आपका इस दिन बाय आया था। ठीक है, तो अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस देखते हैं तो काफी बड़ा इसका टारगेट अपने को मिल रहा है अराउंड, इसका हाई अगर देखेंगे तो हाई अराउंड 102 का, और लो है 55। तो अराउंड 50 रुपीज का अपने को टारगेट मिल रहा है। तो ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ पे अब दिस इज अ ब्रेकआउट पॉइंट, इसका अगर लेते हैं तो यहाँ से अगर लेंगे 50 रुपीज अगर, तो अराउंड 140 का टारगेट मेरे को मिल रहा है, 141 का टारगेट मिल रहा है। तो प्राइस और स्टॉप लॉस में क्या लूंगा तब, 20 रुपीज का, हाँ सॉरी 50 रुपीज का अगर टारगेट मिल रहा है तो 25 रुपीज का स्टॉप लॉस लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इससे 25 रुपीज नीचे नहीं गया है प्राइस, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आपने यहाँ पोजीशन ले ली है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, या आपने कंफर्मेशन के लिए वेट किया होगा। तो ये ब्रेकआउट कैंडल थी, मैं क्योंकि नेक्स्ट डे प्राइस इसके ऊपर नहीं गया तो मैं पोजीशन नहीं लिया, राइट, यहाँ भी नहीं गया मैं पोजीशन नहीं लिया। तो जब यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर चलना लगा, तब आपने पोजीशन ली। ओके, देन यू हैव बॉट वंस द प्राइस मूव्स अबव दिस लेवल। तो आप ये ड्रॉडाउन भी देखना नहीं पड़ेगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, रिसेंट में एनी असेंडिंग ट्रायंगल, तीन स्टॉक्स आए हैं, फोर्टिस हेल्थ, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एंड 5 स्टार बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, नेक्स्ट डे वापस से इसमें सेलिंग प्रेशर आया। तो बट अगर आप इसमें ट्रेड किए होते तो आपका टारगेट, यहाँ के टारगेट आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके हिसाब से यू हैव टू प्लेस योर स्टॉप लॉस। अगर किसी ने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, अगर इससे ब्रेकआउट में बाय कर लिया अगर। बट आप अवॉइड कैसे करेंगे ब्रेकआउट को बाय, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर क्लोज यहाँ पे नहीं हुआ था, बट यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गया था, तो यहाँ पे तो आप बाय कर ही लेंगे। अगर आप बाय कर लिए यहाँ पे, तो फिर आप अगर ब्रेकआउट कैंडल, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसका लो है 4328, तो 4328 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है 4328 के नीचे, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, नो वरीज, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अगर एक स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो दूसरे स्टॉक में आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा, बट डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मैं और काम नहीं करूंगा या स्ट्रैटेजी नहीं चलता है। ठीक है, बट यहाँ पे और एक चीज अगर आप फॉलो करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, बुलिश कैंडल थी बट वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा था, तो उस हिसाब से भी आप देखें तो ब्रेकआउट को अवॉइड किया जा सकता है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ले लिए हैं, अगर ले भी लिए तो आपका एक स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ओके, सो डिसेंडिंग ट्रायंगल में अभी कोई स्टॉक्स नहीं है, पास्ट में आया है, बट पास्ट में अगर कोई स्टॉक्स अगर बुलिश मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल पे पोजीशन लेंगे तो चांसेस है कि आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर असेंडिंग ट्रायंगल लेंगे बुलिश मार्केट में तो प्रॉफिट आपका, चांसेस आर दैट यू विल गो राइट। ठीक है, तो आपका चांसेस इज हायर दैट इट विल बी योर राइट पोजीशन। ठीक है, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चन ऑन दिस, ऑन सिमेट्रिकल ट्रायंगल? मैं एक बार वापस से क्वेश्चंस में जा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर लूँ।
प्लीज शो द रिसेंट चार्ट पैटर्न सो दैट वी कैन बाय द सब्सक्रिप्शन. ओके ओके विशाल जी, रिसेंट भी मैं दिखाया, मैंने रिसेंट में भी. Bajaj Auto going down in a bullish market and sector should we have taken the trade. Bajaj Auto is going down. If if it has given a breakout, if auto sector is up, stock का निफ्टी का निफ्टी जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो तो अप है. अगर ऑटो सेक्टर भी अप है और बजाज ऑटो भी आपको बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली बाय इट एंड मेंटेन अ स्टॉप लॉस. ओके okay. Should we not look at a near breakout? Yeah, you should follow a breakout level. Near breakout level आपके पास अगर आता है, stock retrace करके near breakout level, you can again buy the stock near the breakout level. लीना जी, thank you लीना जी. Okay, for your feedback. Okay, so recent also I have shared this. There are so many patterns I've already shared in recent. Bajaj Auto, Action Constructions, CSB you can see. Action Construction अभी आया है. So Action Construction has given a downside breakdown. ठीक है, downside breakdown. Now the next question जो बहुत सा आता है कि downside में मैं future option में stock is not listed in a derivative and how should I, मैं इसको downside का मैं क्या काम है. Okay, so downside, in a downside, when a stock has given a downside breakdown and stock is not listed in derivative, then what you can do, अगर आपके डीमैट में ये शेयर है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट. और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द स्टॉक, अगर आज आप एक्शन कंस्ट्रक्शन में खरीदने का सोच रहा था, अगर मैं मंडे एक्शन कंस्ट्रक्शन खरीदने का सोच रहा था और मैंने संडे देख लिया स्टॉकेज में कि एक्शन कंस्ट्रक्शन ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है, तो मैं अवॉइड करूंगा उसमें. मैं वेट करूंगा प्राइसेस को, मैं और वॉच करूंगा कि ये नीचे जाएगा तो मैं नीचे इसको सपोर्ट लेवल्स में बाय करने की कोशिश करूंगा एट लोअर लेवल्स. This is how you can use the stocks which are not listed in derivative, okay, and which is coming under stock edge in a sell bearish strategy में आ रहा है. Okay, तो ये आप कर सकते हैं. कैश में अगर बाय में आ रहा है तो आप बाय में ले सकते हैं. ठीक है, तो 12 जुलाई को आइनॉक्स विंड आया था, तो यहाँ पे आया था आई थिंक 12 जुलाई, या तो 12 जुलाई को आइनॉक्स विंड आया था यहाँ पे. ठीक है, तो उसके हिसाब से हाईएस्ट टारगेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन दिया. ठीक है, एंड वापस से इट इज गोइंग अप. ठीक है, तो ये ड्रॉडाउन थोड़ा हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट देते ही आपका भागने लगेगा स्टॉक, इट इज नॉट लाइक दैट. ब्रेकआउट फॉल्स भी होते हैं. ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट को अपने कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, क्लोज हाई पे नहीं दिया है, ठीक है, तो और बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं है, तो अपने उसको अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, बट वी कैन कभी ना कोई स्टॉक में फंस सकते हैं अपने. इट इज नॉट दैट कि अपने स्टॉक में फंसेंगे नहीं. जितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लीजिए तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर होगा. एंड यू हैव टू, जैसे आप प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हैं वैसे यू हैव टू एक्सेप्ट लॉस ऑल्सो. ठीक है, अगर ब्रेकडाउन बजाज ऑटो हैज गिवन अ ब्रेकडाउन, लेट मी चेक. या बजाज ऑटो हैज गिवन अ ब्रेकडाउन. इफ इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन वी शुड नॉट, अभी तो मैं सेल नहीं करूंगा. क्यों नहीं सेल करूंगा? क्योंकि ओवरऑल मार्केट ब्रेकडाउन इज अ सेल स्ट्रेटेजी, बट आई विल नॉट सेल दिस. ठीक है, मैं अभी सेल नहीं करूंगा, मैं बाय भी नहीं करूंगा, क्योंकि बाय कब करूंगा, जब ये ऊपर का ब्रेकआउट देगा तब मैं बाय करूंगा. ठीक है, अभी मैं सेल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टॉक, क्योंकि निफ्टी का जो सेक्टर है वो अप है और ये बियरिश ब्रेकडाउन दिया, मैं इसको सेल नहीं करूंगा. अगर ऑटो सेक्टर भी अप है, मैंने ऑटो सेक्टर देखा नहीं अभी अप है या डाउन है, मैं अगर बोल रहा हूँ अगर ऑटो सेक्टर भी अप है और निफ्टी भी अप है और बजाज ने ब्रेकडाउन दिया है तो मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बाय भी नहीं करूंगा. ठीक है, आई विल वेट एंड वॉच टू स्टॉक. अगर मैं पैटर्न में काम कर रहा हूँ तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा मैं बाय नहीं करूंगा. ठीक है, वापस से आप अपनी स्ट्रेटेजी से काम करना चाहते हैं तो यू कैन बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आप बाय कर सकते हैं. दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी ऑन योर स्ट्रेटेजी.
But if you want to buy on patterns, then you can buy only if it goes above this level. यहाँ पे close करेगा, then only you can buy. ठीक है. तो बजाज ऑटो हैज ऑल्सो अचीव दिस टारगेट भी उसने अपना अचीव कर चुका है. अचीव करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी लोअर शैडो बनी है, मींस सपोर्ट मिल गया, प्राइस को बाय आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डोजी कैंडल बनी है. ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, और यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं. तो इसको अभी हम लोग अवॉइड करेंगे. वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, मे बी एनी, आई थिंक, आई डोंट नो रिजल्ट आया हो इसका या कुछ होगा या कोई भी न्यूज होगा जिसकी वजह से ये किस दिन का था, या बजट वाला डे था क्या? हाँ, आई थिंक बजट वाला डे था. तो उस दिन ये था, तो वॉलेटिलिटी उस दिन बहुत ज्यादा थी. ठीक है, प्राइस नीचे जाके फिर वापस ऊपर चले गए थे. ठीक है, तो इवेंट वाले डे को अपने को अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट वाला डे का ब्रेकआउट हुआ, ये भी मैं अच्छा याद आ गया मुझे, मैंने बता दिया ना. इवेंट वाले डे का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहिए. व्हाई? क्योंकि उस दिन बहुत वॉलेटिलिटी थी, बहुत से टारगेट स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो आपके जो नॉर्मल मार्केट के अंदर में जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इवेंट वाला डे. कोई इवेंट की वजह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अपने को अवॉइड करना चाहिए. राइट. ओके. सो और मैं आपको एनी पैटर्न्स, टेल मी विच पैटर्न्स यू ऑल वांट, आई विल डिस्कस दैट पैटर्न. कैन राइट इट डाउन. तो वही पैटर्न डिस्कस. सो देयर आर सो मेनी पैटर्न्स, आई कैन डिस्कस वन और टू पैटर्न्स. कप एंड हैंडल पैटर्न इज नॉट इन द लिस्ट. अभी आया नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न अपने स्टॉकेज में. ओके okay? जब आ जाएगा देन विल डिस्कस कप एंड हैंडल. फ्लैग पैटर्न. ओके चंद्रिका जी, फ्लैग पैटर्न. ओके, सो आई स्टार्ट फ्लैग पैटर्न. प्रतीक जी, वेज पैटर्न. ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो एवरीबॉडी इज गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न. किसी का भी कॉमन डिमांड अभी तक नहीं आया है. तो फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो मैं जिसका पहले आया फ्लैग पैटर्न, तो पहले मैं वो लूंगा, फिर मैं हेड एंड शोल्डर लूंगा, और टाइम बचेगा तो फिर मैं वेज पैटर्न ले लूंगा. ओके, नहीं, पहले फ्लैग देन वेज एंड देन हेड एंड शोल्डर. ओके, सो फ्लैग पैटर्न. So flag pattern is a continuation pattern. Flag pattern is a continuation pattern. Okay. Which pattern has a high probability? Channel pattern. Okay. So there are all patterns, have a probability of, success ratio of, 60 to 70%. ठीक है. But ये percentage depend on you. मैं पहले ही बताता हूँ आप किसको कैसे यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो पैटर्न्स का सक्सेस रेशियो जो है वो 65 to 70% होता है. जनरल. ठीक है. बट इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपके लिए ये 80% हो सकता है, तो मेरे लिए ये 40% भी हो सकता है. आपने बुलिश मार्केट में, बुलिश पैटर्न में ट्रेड किया, बुलिश सेक्टर में ट्रेड किया, आपका स्टॉक टारगेट अचीव किया, सो इट इज गुड फॉर यू. ठीक है, आपका सक्सेस रेट हायर होगा. मैंने बुलिश मार्केट में, बुलिश सेक्टर में मैंने बेयरिश पैटर्न को ट्रेड किया, तो मेरा सक्सेस रेट क्या होगा? लेस होगा. राइट. तो दिस इज हाउ सक्सेस रेट विल ऑल्सो डिपेंड एंड वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट एज अ जनरल, ठीक है, ये मतलब पैटर्न स्टॉकेज का नहीं निकाला हुआ है कि ये 60 to 70% जो है, ये यूनिवर्सली देखा गया. चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो 60 to 70% काम करते हैं. ये किसी के लिए 40 भी हो सकता है, तो किसी के लिए ये 80-90% भी हो सकता है. तो इसको आप और कितने बेटर वे से यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ उस फर्दर एनालिसिस के आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू कैन मेक इट 40% और यू कैन मेक इट 90%. ओके, बट एज अ जनरल रूल it is between 60 to 70%. Okay, thank you Praveen ji. So bullish flag, as I've said, is a continuation pattern. तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ग्रीन है बुलिश, एंड बेयरिश फ्लैग इज अ रेड, इन रेड. ओके, तो रिसेंट में देयर इज नो पैटर्न. बुलिश फ्लैग में भी नहीं आया है, बुलिश बेयरिश फ्लैग में भी अभी कोई पैटर्न आया नहीं है. ठीक है, तो पास्ट में अपने एक बार देख लेते हैं. पास्ट में 102 स्टॉक्स आए हैं बुलिश में, एंड 74 स्टॉक्स आए हैं बियरिश में. ओके, तो पास्ट मींस रिसेंटली, अभी जुलाई 1 जुलाई को आया था. ओके,
दैट इज इंडिगो पेंट्स, 1387 में आया था, अभी प्राइस चल रहा है 1491। तो ये है, दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जब भी इसके ऊपर बंद हो जाएगा तो क्या होगा आपका, ब्रेकआउट विल बी कंफर्म्ड, ओके, ब्रेकआउट विल बी कंफर्म्ड। सो दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। नाउ इसका टारगेट मैं अभी वापस से एक बार पीडीएफ में लेके चलता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस एक्सप्लेनेशन के लिए। So you can see bullish flag is formed in an uptrend. It's a continuation pattern. तो prior trend was up, पहले का ट्रेंड क्या था, अप था, ओके। देन देयर इज अ कंसोलिडेशन, एक रेंज में ट्रेडिंग होने लगी, ठीक है। ये फ्लैग एक ऐसे चैनल के फॉर्म में भी हो सकता है या एक ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। द एजेंडा मींस द वो मेन, वो जो है कि एक पैटर्न में कंसोलिडेशन चाहिए, एक अप रन के बाद एक कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। तो फ्लैग, इसको फ्लैग एंड पोल नाम दिया गया है बिकॉज ये एक फ्लैग और पोल की तरह रिप्रेजेंट करता है, उसी की तरह दिखता है। तो ये अपना एक पोल हो गया और दिस इज द फ्लैग, ओके। इसमें वी कैन फाइंड टारगेट इन टू वेज, दो तरह से अपने टारगेट इसमें निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज वी कैन कैलकुलेट द टारगेट, जो फ्लैग का जो हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस होगा फ्लैग का, सपोज दिस हाई एंड दिस लो, ओके। और जनरली अगर इस तरह का पैटर्न है तो जनरली आपका सेम हाई और लो बनता है, ठीक है। तो दिस हाई एंड दिस लो, ओके। तो ये डिफरेंस निकालेंगे, अपने फ्लैग का डिफरेंस निकालेंगे और ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड कर देंगे टू गेट द फर्स्ट टारगेट। विल ऐड एट द ब्रेकआउट पॉइंट, ओके। एंड सेकेंड टारगेट विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दिस पोल, ये पोल का जो हाइट है, मींस ये हाई और ये जो लो है, इसका डिफरेंस निकालेंगे एंड विल ऐड टू द ब्रेकआउट पॉइंट। सपोज यहाँ आपका 250 है और लो है 150, तो डिफरेंस इज 50 रुपीज, सो विल ऐड दिस 50 रुपीज एट दिस ब्रेकआउट पॉइंट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे टू गेट द सेकंड टारगेट, दैट इज द पोल। तो ये आपका सेकंड बड़ा टारगेट होगा। फर्स्ट स्मॉल टारगेट जो होगा वो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस फ्लैग का डिस्टेंस निकाल के इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, ओके, क्लियर है। तो दिस इज बुलिश ब्रेकआउट। व्हाट इज टाइम फ्रेम, अपने जो पैटर्न्स बने हैं दैट इज ऑन डेली, ठीक है। कितने टाइम तक आप रख सकते हैं ड्यूरेशन, यू कैन कीप इट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक आप रखिए। अगर ना टारगेट अचीव हुआ है ना स्टॉप लॉस अचीव हुआ है देन यू कैन एग्जिट, ठीक है। सो दिस इज अ बुलिश पैटर्न एंड अगेन दिस इज अ बियरिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न में द प्रायर ट्रेंड वाज डाउन, देन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन द रेंज, ओके, एक रेंज में ट्रेडिंग किया एंड देन इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन। और इसका भी टारगेट वैसे ही निकालेंगे, दो टारगेट। इस ये जो फ्लैग का डिस्टेंस है उसको अपने अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द फर्स्ट टारगेट एंड विल सब्ट्रैक्ट दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पोल, ये पोल का लो, ओके, ये हाई और ये लो को डिफरेंस निकाल के ऐड करेंगे टू गेट द सेकंड टारगेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन पॉइंट टू गेट द सेकंड टारगेट, ओके। सो दिस वाज द पोल, flag and pole, okay, so this is a continuation pattern, okay। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज अ बियरिश, दिस इज पोल, दिस इज फ्लैग जो एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना है। यहाँ पे स्टॉक जब भी इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो दैट इज इट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, ओके। नाउ अदर पैटर्न वाज, ठीक है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ, वेज। सो आफ्टर फ्लैग इट वाज अ डिमांड ऑफ प्रतीक जी, सेकंड आया था उनके पास से, दैट इज वेज पैटर्न, ओके। नाउ द वेज पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न एंड वेज पैटर्न जो है इट वो दो तरह से काम करता है। इट कैन बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और इट कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। बट इन बोथ द केसेस it is bullish. Falling wedge, there are two types of pattern, sorry, there are two types of pattern, falling wedge and rising wedge, okay, falling wedge and rising wedge. So falling wedge is a bullish pattern, falling wedge is a
bullish pattern. And if falling wedge is formed in an uptrend, अगर uptrend में falling wedge बनता है, then we call it as a continuation pattern. Uptrend में अगर falling wedge बन रहा है, then it is called a continuation pattern. अब अगर downtrend में falling wedge बन रहा है, then it is a reversal pattern. Okay, but in both the cases it is a bullish pattern. मतलब the price is expected to go up. अगर uptrend में ही बनता है falling wedge, तो प्राइस एक्सपेक्ट है कि ऊपर जाएगा. डाउन ट्रेंड में भी अगर फॉलिंग वेज बनता है, क्योंकि ट्रेंड डाउन था, अब एक्सपेक्टेड है कि रिवर्स करके ऊपर जाएगा. तो इन बोथ द केसेस इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप. So falling wedge is a bullish pattern. Again, I am repeating, falling wedge is a bullish pattern. If formed in uptrend, then it is a continuation pattern. And if formed in a downtrend, then it is a reversal pattern. Okay. So now falling wedge. So wedge can be of two types, rising wedge and falling wedge. ठीक है. So formation इसका कैसे बनता है rising wedge का? मैंने falling wedge डिस्कस कर लेता हूँ. जो falling wedge मैंने बताया. So falling wedge में क्या है? lower highs बना रहे हैं and prices are also slightly going down. ठीक है. तो इसमें क्या है, आपके दोनों जो है नीचे के आ रहे हैं, दोनों लाइंस जो है वो नीचे स्लैंड डाउन कर रही है. तो द मोमेंटम, तो प्राइस वाज ट्रेंडिंग अप. ठीक है. और क्या हुआ, मोमेंटम यहाँ पे लूज हो गया, एक नैरो रेंज में प्राइस मूव करने लगा एंड यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया. तो जब प्राइस ब्रेकआउट दे देगा और पहले का ट्रेंड अप था और प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, देन इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके. सो हाउ यू विल फाइंड द टारगेट कैसे फाइंड करेंगे अपना? सेम लॉजिक, विल टेक द जो वाइडेस्ट डिस्टेंस होगा, वाइडेस्ट डिस्टेंस जो होगा वेज का, तो सबसे वाइडेस्ट डिस्टेंस कौन सा है वेज का? ये वाला. तो वाइडेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस अपने कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस, एंड विल ऐड टू द ब्रेकआउट पॉइंट. ओके. ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे द वाइडेस्ट डिस्टेंस टू कैलकुलेट द टारगेट. स्टॉप लॉस यू कैन टेक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. यू कैन टेक एनी सपोर्ट लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हैं. इसका इस लाइन के अगर नीचे बंद होता है, देन यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस देयर. Okay. So falling wedge. So this is a falling wedge, which is the stock was trending down in an downtrend, and here it has given a breakout. So this is called be a reversal pattern. Okay. So rising wedge क्या है? Rising wedge is just उल्टा of falling wedge. That is, it's a bearish pattern. अगर uptrend में बनेगा rising wedge, then it is a uptrend reversal, मतलब up से नीचे जाएगा, bearish. अगर downtrend में बनेगा, okay, then it will call a continuation pattern. So in both the cases, rising wedge, if rising wedge is formed either in uptrend or downtrend, it is the price is expected to go down. Okay. So you can see this is rising wedge. ठीक है. तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद it has gone down. So now I'll take you to the patterns का stockage. So wedge patterns. So 15 stocks are there in wedge pattern. Okay. 8 under the falling wedge and 7 under the rising wedge. ठीक है. उसको खोल के देखते हैं अपने. तो जय बालाजी, ठीक है, 25 जुलाई को फॉर्म हुआ है. लेट्स ओपन इट. तो जय बालाजी डाउन ट्रेंड जा रहा था, इट वाज ट्रेंडिंग डाउन एंड हियर इट हैज गिवन एन अपसाइड ब्रेकआउट. ठीक है. अपसाइड ब्रेकआउट दिया यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया. टारगेट अपना कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हाई जो वाइडेस्ट डिस्टेंस है वेज का, so that is this high and this low का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे and will add up to the breakout point. Okay. Then there is network 18. So this breakout is stronger compared to the last breakout जो अपने जय बालाजी में देखे था.
उसका ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था, यहाँ पे उतना ब्रेकआउट क्यों रेड कैंडल के साथ था, बट जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो इट विल कम अंडर द स्कैनर। ओके, तो अब यहाँ पे आप जय बालाजी देखिए, नेटवर्क 18। तो प्राइस हैज गिवन एंड द वॉल्यूम हैज आल्सो गॉन अप शार्पली। ठीक है, तो मैं तो ये स्टॉक अगर देखा जाए तो क्या हुआ, द प्रायर ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, फिर इसने करेक्शन दिया, फॉलिंग वेज बना, तो ये अपने इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलेंगे। इट विल बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि प्रायर ट्रेंड क्या था, प्रायर ट्रेंड वाज अप ट्रेंडिंग, इट हैज गिवन करेक्शन, फॉर्म फॉलिंग वेज, अगेन इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। तो अपने डिफरेंस टारगेट, ये हाई और ये लो का डिफरेंस निकाल के टारगेट कैलकुलेट कर लेंगे। स्टॉप लॉस अपने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं, और आप इस कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, सो दिस वाज नेटवर्क 18 जो अभी रिसेंट में आया। ओके, तो अगेन अल कार्गो 4 जुलाई को आया, तो अभी ये सब रिसेंटली आए हैं। तो इन दिस केस स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट, यहाँ पे दिया है, तो वॉल्यूम भी बड़ा है। ठीक है, ऑल्दो द प्राइस हैज आफ्टर गिविंग ब्रेकआउट द प्राइस इज ट्रेडिंग इन अ रेंज, बट स्टिल इट इज वैलिड, क्योंकि अभी भी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे तक प्राइस नहीं किया है, क्लोज नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी अप हुआ था। और तो ये स्टॉक आप नजर में रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें मोमेंटम आता है तो यू कैन इंटर इनटू द स्टॉक। सो यू कैन सी देयर इज सम पास्ट स्टॉक्स। पास्ट स्टॉक में सोनाटा सॉफ्टवेयर 1 जुलाई को आया था। सो सी सोनाटा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया एंड अगेन इट इज मूविंग अप। ठीक है, तो वंस इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, आपने एंट्री ले ली, द ओनली थिंग इन योर हैंड इज टू ट्रेड मैनेजमेंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो राइजिंग वेज, सो मेनी स्टॉक्स फॉर्म्ड इन राइजिंग वेज। तो बहुत अच्छा, मुझे इंपॉर्टेंट एक वो मिल गया आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए, केन्स टेक्नोलॉजी। अभी केन्स टेक्नोलॉजी राइजिंग वेज बना था 2700 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था इस कैंडल में। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, राइट, ज्यादा नीचे नहीं आया, थोड़ा नीचे आया, एंड देन स्टार्ट मूविंग अप। तो राइजिंग वेज इज अ बेयरिश पैटर्न, इसने यहाँ पे बेयरिश दिया, बट बहुत ज्यादा अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया। बट मैं वही कहना चाहता हूँ, तो राइजिंग मार्केट में ओवरऑल मार्केट अगर अप है, अगर आप उसमें बेयरिश पैटर्न खेलेंगे तो चांसेस आर हायर दैट वो परफॉर्म नहीं करे, राइट। अगर ओवरऑल मार्केट अप है, सेक्टर भी अप है, और बुलिश पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हैं तो चांसेस हायर है कि राइट पड़ेंगे। ओके, तो नॉट ओनली पैटर्न्स, आपको साथ में ओवरऑल मार्केट एंड सेक्टर भी देखना पड़ेगा फॉर एंट्री। तो अभी आप, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अप है, तो बेयरिश पैटर्न जितने भी लेंगे तो चांसेस आर हायर कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। बट बुलिश पैटर्न अगर आप लेंगे तो चांसेस हायर दैट आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तो रिसेंट में अपने पास 7 स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो फीनिक्स मिल 22 जुलाई को आया था। Sorry. तो 22 जुलाई को आया था, अच्छे से ब्रेकडाउन दिया इसने। ठीक है, बिग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, एंड इट इज अभी भी उससे ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे ही है। अगर कोई, जब तक इसमें बाय कब तक नहीं होगा, जब तक ये ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर नहीं चलता है, वी विल नॉट बाय। ठीक है, या अगर मुझे नीचे लेना है तो मैं सपोर्ट के आसपास में लेने की कोशिश करूंगा, कि सपोर्ट के आसपास मिलेगा तो मैं बाय करूंगा। अभी क्योंकि ये ट्रेंड इसका राइजिंग वेज बन गया, इसका रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ पे इसको मैं नीचे लेवल्स में देखूंगा। अभी मैं बाय, ये दैट्स अ सेल, तो मैं सेल, इसको सेल का माइंडसेट के हिसाब से सोचूंगा, बाय के माइंडसेट के हिसाब से
नहीं सोचूंगा। ठीक है। 18 जुलाई को आदित्य बिरला कैपिटल, तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है। तो ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा नीचे गया, और अगेन उसके बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है। अब जब तक ये ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज कर देता है, अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाएगा तो जिनका भी सेल है तो वो निकल जाए। ठीक है। वो बाय पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है। वो बाय पोजिशन बनाएंगे, दैट इज ऑन द सपोर्ट लेवल। मगर आप पैटर्न के हिसाब से अगर बनाएंगे, तब आपका पैटर्न के हिसाब से पोजिशन विल ओनली मेड अबव दिस लेवल, जब तक ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देता है। और ये जो राइजिंग चैनल है, तो इसमें आप ऊपर में भी, सॉरी, राइजिंग चैनल में आप ऊपर का ब्रेकआउट में भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, बिकॉज दिस इज अ बियरिश पैटर्न। अगर ऊपर चला जाता है द पैटर्न विल बिकम इनवैलिड। यू कैन यूज, पैटर्न का वो जो था वो निगेट हो जाएगा, पैटर्न का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, वो न्यू अप मूव ले सकता है, तो पैटर्न का काम वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है। पैटर्न के हिसाब से आप वहां ट्रेड नहीं कर सकते अगर इसके ऊपर बंद कर दिया। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना चाहे, देयर यू कैन डू इट, बट पैटर्न के हिसाब से वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ओके, आई थिंक आई शुड एंड द session, बहुत I think it's around 7:30. Thank you, Madhuvak ji, for your feedback. Can to create the pattern which we can use candle or line chart, which is high. You can use both candle as well as line chart. Okay, दोनों में दिखेगा आपको पैटर्न, कैंडल में भी दिखेगा, लाइन चार्ट में भी दिखेगा। आपको जिसमें ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन मिले, यू कैन, जिसमें ज्यादा अच्छे से आप देख पाए, वो आप यूज कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस, क्लोज में क्या होता है, लाइन चार्ट में क्लोज प्राइस होता है, हाई लो नहीं दिखेगा, बट कैंडल पैटर्न में आपको हाई और लो भी दिखेगा। ओके, माई पर्सनल, मैं प्रेफर करता हूँ कैंडल। ओके, बट दैट माई पर्सनल चॉइस। आप अपना लाइन भी यूज कर सकते हैं, कैंडल भी यूज कर सकते हैं, बार भी यूज कर सकते हैं। ओके, can we access which side breakout or breakdown will happen? So we cannot predict which side it will happen. ये होने के बाद ही, ब्रेकआउट का एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकआउट आप या ब्रेकडाउन होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ठीक है। प्रिडिक्शन तो ऐसे अपने कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ जनरल रूल, ब्रेकआउट आपको तभी होगा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है। विशाल जी, which pattern is useful for commodities for intraday purpose? Priyanka ji, see, every patterns, these patterns, patterns जो होता है और technical analysis जो होता है, it is not limited to equity or currency or the beauty of technical analysis or chart patterns is that you can, implement in any financial, product. कोई भी financial product में आप इसको डाल सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आप किस में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो हो। तो ये पैटर्न्स क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इट विल वर्क एवरीवेयर। ओके, हाउ टू अराइव एट द टाइम टेकन फॉर अचीविंग द टारगेट? सी, टाइम टेकन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कितने टाइम में लीना जी ये अचीव करेगा। ठीक है। तो एज अ, क्योंकि अपने जितने भी है टारगेट जनरली अपना 20-25% के अंदर ही होता है। तो अगर मोमेंटम है, स्टॉक में मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि 3 महीने के अंदर टारगेट अचीव कर जाएगा। ठीक है। बट कभी कदा वो 15 दिन में भी कर सकता है, 5 दिन में भी कर सकता है, और कभी कदा 3 से ज्यादा टाइम भी ले सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से परफेक्ट टाइमिंग के कितने टाइम में अचीव करेगा टारगेट। ठीक है। टारगेट बता सकते हैं, क्या पैटर्न बता सकता है क्या टारगेट अचीव करेगा, बट कितना टाइम लेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अचीव द टारगेट। बट एज अ जनरल रूल, you can fix it to 3 months. Okay. Thank you, Ashok Kumar ji, for your feedback. Thanks, Chandrika ji. Rudra ji, thank you. Okay, I love and enjoy the Saturday session. Thank you, Rudra ji. And hope you all are getting some benefit of this session. Okay, and you are utilizing it. Knowledge should be utilized. इसको आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड
छोटे अमाउंट से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एंड टेक, अगर लॉस होता भी है कोई में, तो टेक इट एज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग। तो लॉसेस को अगर आप एज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग लेंगे ना, कि मैं सीखने के लिए, अगर आप कोई कोर्स करेंगे, ये करेंगे, उसमें आप लाख रुपया दे देंगे, इट्स बेटर कि आप 50,000 रुपया लाइव अपना ट्रेडिंग कीजिए खुद से, ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर लॉस होता भी है तो टेक इट एज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग। इफ यू टेक योर लॉस एज अ कॉस्ट ऑफ लर्निंग, योर माइंडसेट विल चेंज, ठीक है। वो आप अपना प्री प्लान माइंड बना लीजिए कि अगर मेरा मार्केट में इतना लॉस होता भी है तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ लर्निंग के हिसाब से लूंगा। लॉसेस सबके होते हैं, मेरा भी पोजीशन रहता है, तो मेरा भी ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, लॉस होता है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा कभी लॉस नहीं होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट। लॉसेस आर इनविटेबल, यू कैन जस्ट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन मिनिमाइज इट, ओके। आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस, ठीक है। तो मार्केट में हर किसी का लॉस लगता है, जितने बड़े भी एनालिस्ट हो जाए, जितने बड़े भी वो, सबका लॉस लगता है, ठीक है। अगर आपका कोई लॉस लग रहा है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है लॉस लगना, इट्स अ पार्ट, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, होप यू हैव ऑल लाइक द सेशन, ठीक है। टुडे इज माय इट वाज ग्रेट, ओके सेंथिल जी, थैंक यू एवरीबॉडी। सो आई एम एंडिंग द सेशन। कुछ स्टॉक्स आई थिंक रह गए होंगे मेरे पास, इंडिविजुअली स्टॉक्स को मैंने कवर नहीं किया है, बिकॉज फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए यू कैन आस्क अंडर द क्लब, ओके। आई हैव ट्राइड टू बी लिमिटेड, पैटर्न के अंदर में लिमिट रखा हूं अपने आप को। If yeah, this is an important question. Please tell me if any pattern has more than 10 to 20 stocks, then how to pick my stock? That is वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अब 10 to 20 स्टॉक्स बना है, तो उसमें से आपको देखना होगा कौन कौन से स्टॉक्स के सेक्टर भी अप है और वो स्टॉक्स भी आ रहा है, ओके। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मान लिया दीपक फर्टिलाइजर आ रहा है, दीपक फर्टिलाइजर सेक्टर भी अप है, मार्केट भी अप है, और वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। दीपक फर्टिलाइजर ब्रेकआउट के टाइम हाई के ऊपर बंद हुआ है, आरएसआई भी उसका 50 के ऊपर है, ठीक है। आरएस भी जो है वो 0 के ऊपर है, पॉजिटिव है, आरएस इज ऑल्सो पॉजिटिव, आरएस नेगेटिव में नहीं है, तो दैट विल गिव मी कॉन्फिडेंस टू बाय, तो मैं वो स्टॉक पे जाऊंगा। एक स्टॉक का आरएस नेगेटिव है और एक स्टॉक का आरएस बुलिश है, ठीक है, पॉजिटिव है, और दोनों ने मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, तो आई विल गो फॉर अ जिसका आरएस पॉजिटिव है। तो ऐसे कर करके आपको स्टॉक फिल्टर करना होगा। किसी ने ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ दिया है, बिग बुलिश कैंडल में, और एक कैंडल है जिसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया है बट क्लोजिंग उसका नीचे में हुआ है, अपर शेडो बन गई है उसमें, तो आई विल अवॉइड दैट स्टॉक, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। Although the price has closed above the breakout level, but at higher level because of the large upper wick, the price has closed down. Okay, so मैं उसको avoid करूंगा. So thank you everybody for your time. Okay, so I'm ending the session. जिसकी recording miss हो चुकी है, so they can आप उसमें recordings में देख पाएंगे, ठीक है, you get the recordings. So in recordings, my daughter is shouting. She's 10 months. ठीक है. So I'm ending the session. Thank you everybody for your time. Meet you all the next Saturday. Okay. Hope you have liked the session and enjoyed it and get some benefit out of this session. Thank you everybody.